we have breaking updates now coming in. Pappu Yadav sparking a big controversy and predicting the exit of Nitish Kumar from the NDA, saying after the polls, Nitish will leave the NDA. Now, that's the big claim that has been made by Pappu Yadav, and he also seems to be speaking for the Congress party, claiming Congress will give Nitish his due. Now, Pappu Yadav has sparked off a controversy. This is amid the NDA putting up a very united form, and you have a huge divide within the Mahagathbandhan. But Pappu Yadav now claiming that Nitish will exit from the NDA after polls. बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोग के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे? हाँ, लीड करेंगे वो? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया, सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। Independent MP, but many within the Congress party have also claimed that it is Pappu Yadav who's calling the shots. My colleague Saket joining us on the broadcast with the details. Saket, Pappu Yadav now claiming that Nitish Kumar is going to dump the NDA. देखिए, पप्पू यादव ने ये आरोप कह सकते हैं पूर्वानुमान लगाया है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कई बार इधर से उधर गए हैं, महागठबंधन के साथ भी आए हैं और एनडीए के साथ भी गए हैं। लेकिन इस बार 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 नीतीश कुमार ये बात साफ कर रहे हैं, उसके दल के तरफ से साफ हो रहा है और खुद नीतीश कुमार भी हर मंच से कह रहे हैं कि अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। पप्पू यादव चूंकि विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से उनका संबंध जो है वो देखा जाता है, तो ऐसे में वो इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार हो सकता है कि फिर से पलटी मार दे। लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल तो नहीं दिख रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे के बाद जो तस्वीर दिखेगी, जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो किस आधार पे होगा, किसको कितनी सीटें मिल रही है, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जो उसका हल चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे किस तरह की स्थिति और रणनीति पार्टियां बनाती हैं। Okay, all right. So this is a claim that has been made. Interestingly, Nitish Kumar and many from the NDA as well have said that he is also the chief ministerial candidate, isn't it, Saket? Many from within the NDA have said that Nitish Kumar is going to be the chief ministerial candidate, and it seemed like there was absolute unity on one hand, and this statement from Pappu Yadav also comes at a time when in many of the constituencies you're also seeing a fight within the India bloc. To stay with us, we have Nikhil Anand joining us on the broadcast. Nikhil Anand, it's a prediction that is being made by Pappu Yadav, and he claims that after the polls, Nitish Kumar will leave the NDA and the Congress party will give him his due. Pappu Yadav is not an astrologer. And how can Pappu Yadav predict? It's his strategy to grab just a headline. Nobody is asking Pappu Yadav. Even RJD has thrashed Pappu Yadav. Congress people are ignoring Pappu Yadav. And Pappu Yadav wants a space in Bihar politics. The elections are going on. And in all over the election days, nobody is asking Pappu Yadav to come and campaign. And the way he even acted like a stooge by calling Tejasvi Yadav Jan Nayak of Bihar. So he has resorted to any level, such a petty level, to grab headlines, to survive in politics, and just to seek an attention from the party bosses. Okay, all right. You're saying that there is nothing to what Pappu Yadav has claimed. He is making these allegations without any reason whatsoever. A lot of controversy also hitting the Congress party, with many claiming that Pappu Yadav is now making decisions on behalf of the Congress party. Pappu Yadav has claimed that Nitish Kumar will dump the
NDA. Mr. Nikhil Anand, I also want to ask you, this comes amid, the NDA putting up a very united front. But on the other hand, you're saying in Mahagathbandhan as well, there has been a divide over the seat sharing tussle as well. So the indication from Pappu Yadav seems to be that while the NDA is putting up a united front, all is not well. Is that so? Yeah, of course. Pappu Yadav is passing a message with another motive. You see that NDA is very much united. We are contesting this Bihar election under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji and Chief Minister Nitish Kumar ji. We have two faces. And everyone in Bihar knows what NDA government has done for the welfare of common people in Bihar as well as development of Bihar. So here the Grand Alliance people are on a bickering note. They are a divided house. They are contesting against each other. And Tejasvi Yadav has lost the election before the first phase even have taken place. So Pappu Yadav just wants to pass the message to the electorates of Bihar that Grand Alliance is still relevant. But basically, Grand Alliance has lost relevance for the people of Bihar, and Grand Alliance is going to lose this election miserably. Okay, all right. Thank you for joining us on the broadcast, Mr. Nikhil Anand. The BJP going on to say that the divide within the Mahagathbandhan is well known, and that's the reason why such claims are being made. Listen in. बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे? हाँ, लीड करेंगे वो? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। Mr. Mrityunjay Tiwari from the RJD joining us on the broadcast. Mrityunjay Tiwari ji, thank you for joining us. पप्पू यादव ने ये कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से चले जाएंगे पोल्स के बाद। आरजेडी का क्या कहना है इस पे? देखिए, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की राजनीति को 2025 में बीजेपी फिनिश करेगी, ये बात तो हम लोग कह ही रहे हैं, तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं। अब कौन कहाँ चले जाएंगे, क्या करेंगे, ये हम कैसे बता दें? तो ऐसे महागठबंधन से कोई बात हुई है क्या उनकी? क्योंकि पप्पू यादव ने तो ये कहा है कि उनको ही विल गेट हिज ड्यू इन द कांग्रेस पार्टी, की उनको जो सम्मान एनडीए में नहीं मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी देगी उनको। ये उन्होंने किसके बिहाफ से कहा है? कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रूप से अधिकृत कोई बयान है नहीं, और लगातार हम लोग तो कह ही रहे हैं कि अब 2025 नीतीश कुमार जी की राजनीति फिनिश। अब बीजेपी उनको उस हाल में छोड़ेगी ही नहीं, उनका तो अब राजनीति ही समाप्त कर देगी। तब कौन कहाँ जाएगा जब हमारे पास प्रचंड बहुमत है? बहुमत होगा, हम जनादेश तो जेडीयू के बिना भी गठबंधन आपके नंबर आएंगे, ये कह रहे हैं आप। लेकिन गठबंधन में तो आप भी हैं, आप कह रहे हैं कि आप इसमें नहीं बात करना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नीरज कुमार ऑफ द जेडीयू इज ऑल्सो विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। नीरज कुमार जी, पप्पू यादव जी का ये कहना है कि नीतीश कुमार पोल के बाद एनडीए छोड़कर महागठबंधन चले जाएंगे। All right, we don't have Neeraj Kumar with us, but this is the claim that is being made by Pappu Yadav. It's a sensational claim that is being made by him. Remember, reiterations have been coming in from the BJP as well as the JDU time and again that they are united. Many from the BJP, including Giriraj Singh, have also said that the chief ministerial candidate is going to be Nitish Kumar. We have more breaking updates now coming in on the broadcast. While we speak of the rift within the Mahagathbandhan, it only seems to be widening further. The JMM, which had decided not to contest the elections in Bihar, has now slammed the alliance for keeping them in the dark. The ruling Jharkhand party has hit out at the RJD as well as the Congress party, accusing them of betrayal. देखिए, जब अपने ही विश्वासघात करते हैं
या राजनीतिक चालबाजी करते हैं तो फिर वैसे माहौल में चुनाव लड़ना या उनके साथ जाना आगे संभव प्रतीत नहीं होता है। हम लोगों को गुमराह किया गया, हमें डार्क में रखा गया, हमारे साथ राजनीतिक धूर्तता की गई। एक गठबंधन में जहां एक तरफा हम समर्थन या एक तरफा प्यार बोलिए गठबंधन साथियों के लिए, आपने देखा होगा पिछली बार मात्र एक प्रतिनिधि चुन के आया था आरजेडी का, और हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी ने बड़ा दिल दिखलाते हुए काबीना मंत्री बनाया उन्हें। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। उस सोच का होना चाहिए व्यक्ति को, जो हमारे काउंटर पार्ट हैं, जो और घटक दल के नेता हैं। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में तेजस्वी यादव जी थे, कांग्रेस के नेतागण थे, लेकिन आरजेडी की तरफ से भी हमें विश्वासघात मिला। परंतु कांग्रेस जो इंटरवेन कर सकती थी, मामलों को देख सकती थी, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी हम लोग मानते हैं, बड़े भाई की भूमिका में, उनकी भी भूमिका उचित प्रतीत नहीं हुई। तो राजनीतिक रूप से आहत वाली स्थिति है। और ऐसे माहौल में चुनाव क्या लड़ना, जब अपनों ने ही धोखा दिया, तो फिर अब आगे रास्ता तय करेगी हमारी पार्टी, हमारे नेता तय करेंगे कि आगे कैसे राजनीतिक सफर तय करना है, किन लोगों पर भरोसा करना है, गठबंधन आगे चलाने का औचित्य है नहीं है, क्या कुछ है। अब तो मुझे लगता है चुनाव बाद इस पर मोर्चा जो आदिवासियों की आवाज है पूरे बेल्ट। And well, look at that. The Congress party has washed its hands off the entire rift in the opposition alliance, saying Tejaswi Yadav is responsible for maintaining the coordination in the alliance. And only he can answer as to why the JMM has walked out of the Bihar elections and the alliance that has been put in place. Listen in. इन लोगों ने क्या बात किया, इन लोगों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से बातें भी हुई, तो क्या बातें हुई। अगर आरजेडी ने अगर किया है तो स्वाभाविक तौर पे उनको सीट देना चाहिए, लेकिन इसमें कांग्रेस कहाँ है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था कि कैसे वो गठबंधन के अंदर तमाम चीजें ऑल इज वेल हो, सामंजस्य बने। My colleague Saket is joining us on the broadcast with the details. Saket, less than 2 weeks to go for the Bihar Assembly elections. You have JMM going on to say apno ne dhoka diya. They're saying that the RJD cheated them. Congress party did not speak up. The Congress meanwhile putting the blame entirely on Tejaswi Yadav. देखिए, बिल्कुल, चूंकि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, तेजस्वी यादव पर तमाम दलों को साथ ले चलने की जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव के चलते अगर गठबंधन में कोई दल अलग होता है तो इसका सीधा ब्लेम तेजस्वी यादव और आरजेडी पर ही होगा। और वही तस्वीर दिख भी रही है, चाहे जेएमएम की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। इन लोगों की तरफ से जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जेएमएम ने तो खास तौर से कहा है कि झारखंड में भी जो अपना गठबंधन इनका है, वहां पर महागठबंधन, उसकी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से 6 सीटों पर वो पहले चुनाव लड़ने का यहाँ पर उन्होंने बात कही और उसके बाद जो चुनाव से ही अपने आप को अलग कर लिया जेएमएम ने, तो अब इसका असर झारखंड के राजनीति पर भी निश्चित तौर पर दिखेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध आरजेडी के इस चुनाव के दौरान नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर एक फ्रेंडली फाइट की तस्वीर दिख रही है। बिहार के 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी कांग्रेस एक साथ है और टोटल 9 सीटें हैं जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल एक दूसरे के साथ उम्मीदवार खड़ा किए हुए हैं। तो ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन पे भारी पड़ने वाला है। और खास करके आप देखिए, कैंपेन के लिए भी बहुत समय नहीं है, 15 से 20 दिन का वक्त है इन पार्टियों के पास। और अब तक ना तो कोई साझा कार्यक्रम बना है, ना साझा चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से आप देखिए, मुख्यमंत्री